Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and hope you all are studying also nicely. And as we have been doing a very interesting chapter, that is the glimpses, है ना, glimpses of the past. हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स हम पढ़ रहे हैं जिनको हम एक पिक्टोरियल ग्लिम्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं एंड दे आर साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. सो देयर आर फ्यू एंड इन यस्टरडेज क्लास वी कंप्लीटेड द 4 glimpses. Now today we will start from the 5th glimpse, that is oppression 1765 to 1835. ऑपरेशन जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं अत्याचार. ओके जब किसी के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन 1765 to 1835. नाउ मूविंग ऑन विद द टेक्स्ट. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. अब देखो कितना टॉर्चरस चीज है, कितना बड़ा अत्याचार है. दैट द ब्रिटिश दे कंटिन्यूसली दे केप्ट ऑन टॉर्चरिंग एंड दे केप्ट ऑन, वी कैन से, ट्रबलिंग द इंडियन पीपल, एंड उन पे वो अत्याचार कंटिन्यूसली करते रहे. इन 1818 दे पास्ड रेगुलेशन 3rd एंड अंडर इट व्हाट वाज गिवन दैट एनी इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट अ ट्रायल इन द कोर्ट. बिना किसी कोर्ट में किसी ट्रायल के, बिना कुछ प्रूफ के, यू जस्ट पिक अप एन इंडियन और आप उसको जेल भी कर सकते हो. Okay, all the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business, and all the time those whoever were British officers in India, they drew big salaries from the government and also made fortunes in private business. And even when they started their private businesses in India, उन्होंने उससे भी बहुत अच्छा कमाया. By 1829 the Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. Now we can see the condition that by 1829 the British people थे ना, they were exporting their British made goods worth 7 crore rupees to India. Now you can see कि अगर यही इंडियन प्रोडक्ट इंडिया में आता, तो सपोज इंडियन प्रोडक्ट इंडिया में ही बनता, यहीं पे बिकता, how good economy would India have? But the rule of British, so British goods worth 7 crore rupees were exported to India by 1829 year. British proposed on the companies loot while Indian industries begin to die. Now British जो थे ना, वो तो क्या हुए, they prospered, वो तो और wealthy होते गए. जो एक कंपनी की जो लूट पॉलिसी चल रही थी ना, उसकी बेस पे, while जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी they started beginning dying, वो खत्म होती गई. Why? Because these British जो इंडस्ट्रीज थी they begin to rise up and Indian started to die. Indian industry started to die. Governor General Bentinck reported back home, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. Now जो हमारे गवर्नर जनरल थे, okay, the Governor General of India, he came back, जो बेंटिक थे, he came back home and he says जो those people who were the weavers of cotton, जो weaver cotton जो थे ना, जो cotton को weave करते थे, they were bleaching. What they were doing? They were bleaching the, उनकी जो bones थी ना, they were bleaching the plains of India. Okay, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी that they became bony. वो starving condition में आ गए थे. Literally you can see in the picture कि ये सारे कितने bony structures हो गए हैं. And we can see कि जो इंडिया के जो cotton weavers थे, वो इतनी pathetic condition में आ गए थे that गवर्नर जनरल बेंटिक जब वापस आए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया and he stated that their bones, the bones of these cotton weavers are bleaching the plains of India. So you can see कि कितने अत्याचार करते थे ये ब्रिटिश, how oppressive they were, वो कितना तगड़ा ऑपरेशन जो है हमारे इंडियन पीपल के ऊपर कर रहे थे, है ना. You can observe it and you can understand. And now after this we will move to the next, we can say the glimpse, that is dissatisfaction, that is glimpse number 6. The year is 1835 to 1856. Okay, 1835 to 1856. Now dissatisfaction, आपको पता है dissatisfaction क्या होती है? जब भी आप किसी चीज से असंतुष्ट हो जाते हो, है ना, when you are not satisfied with anything, like suppose you gave exam and I gave you few marks, तो आप अगर उससे असंतुष्ट हो, आपको लग रहा है आपके वो मार्क्स नहीं होने चाहिए, कुछ ज्यादा होने चाहिए, या कहीं पे गलत मार्किंग हुई है, तो what will you say? Ma'am, I am not satisfied with the marks which I got, please recheck my copy. So you understood what you said, ma'am, please recheck the copy, I am not satisfied, that is you are dissatisfied, आप संतुष्ट नहीं हो. So dissatisfaction refers to
असंतुष्ट होना. ओके, ये जो ग्लिम्स है ये कौन से ईयर का है? 1835 to 56. Now move on with the text. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an English named Macaulay suggested a change. What change? Now education जो इंडिया में थी, it was in Persian and as well as Sanskrit. And in 1835 एक Englishman थे whose name was Macaulay. He suggested a change in the education. And what was the change? Now you can see the speech bubbles. वो क्या कह रहा है? One person is saying we should teach the natives through the English language, and other one is saying I agree. One is saying कि why should not we teach the native people of our country over here in English language? Persian and Sanskrit को छोड़ो, let us teach them in English language. And the other one is saying, oh yes, I agree with you, बिल्कुल correct. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also introduced a new generation of intellectuals. Now, in the next, we can say next block, it is about that English education ने produce किए कुछ clerks. ओके, जिन्हें वो ऐसे पर्सन थे जो अभी क्लर्क्स बन गए इंडियन एजुकेशन आते ही. अर्लियर द ब्रिटिश पीपल यूज टू गिव देम वेरी माइनर, जो हम बोलते हैं ना पिटी जॉब्स होते हैं, छोटे मोटे काम दे देते हैं उन्हें अंडर देम, अपने अंडर. एंड इंसिडेंटली इसने एक न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स को भी प्रोड्यूस कर दिया. नाउ स्पीच बबल से व्हाट? We must educate our brothers. The other one is saying and try to improve their mental condition, and the third one is saying for that we must convey our grievances to the British Parliament. First one is saying we must educate our brother, हमें अपने brothers को educate करना चाहिए, and the second one is saying yes, very right, and we should try to improve their material conditions. बिल्कुल. And the third one क्या बोल रहा है? And for that हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने grievances को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक, हमें अपनी परेशानियों को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक कन्वे करना पड़ेगा. Now by 1856 the British had conquered the whole of India. Okay, so 1856 आते आते ब्रिटिशर्स ने almost whole of the India को conquer कर लिया था, and they cared little about the needs of the Indian, and as they have conquered तो उनका rule establish हो गया, and after establishing their rule they cared very little about the needs of the Indians. Now the speech bubble says our king have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. Now one person is saying all these Indian people are sitting, and जैसे होती थी ना, आपने देखा होगा विलेजेस में नॉर्मली एक बड़े बड़े पेड़ होंगे, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, उसके नीचे अक्सर बैठ के आपस में पूरे ओल्ड विलेज पीपल जो होते थे या यंग ओल्ड जो भी हो, वो बैठ के आपस में डिस्कशंस करते थे अबाउट द सीरियस मैटर रिलेटिंग टू द विलेज कंबाइंड एज अ होल. पूरे विलेज की जो परेशानी होती थी वो लोग उस पर बैठ के बात करते थे. Now when Indian realized that Britishers have captured all our India and they are caring very little about our needs, so they said something. Now what they said, उन्होंने क्या बोला? That our kings have become puppets, कि हमारे जो kings हैं ना वो तो puppets बन गए हैं, and we have lost our old jobs, और हमने अपनी old jobs भी लूज कर दी है. एंड सेकेंड वन इज सेइंग एंड नॉट ओनली जॉब्स, वी हैव लॉस्ट आवर लैंड्स आल्सो, हमने अपने लैंड्स भी लूज कर दिए हैं, एंड दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. एंड द थर्ड वन इज सेइंग वो हमारे ब्रदर्स को इंडियन से, वी कैन से ब्रिटिशर्स में उसमें कन्वर्जन भी चल रहा है, वो उनको कन्वर्ट भी कर रहे हैं टू सम अदर we can say religion, and you only तो now the fourth one is saying क्या बैठे बैठे तुम लोग बातें कर रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं? You only talk, तुम लोग सिर्फ बोलते हो. Do something to drive them out, ऐसा कुछ करो to drive these Britishers out of our India. We should do something, we should plan up something, हमें कुछ करना चाहिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा. Now the next one comes the seventh glimpse, that is the sparks. ओके, द सेवेंथ इज द स्पार्क. स्पार्क समझते हो? चिंगारी, जिसको हम बोलते हैं चिंगारी. ये ऑपरेशन इतना ज्यादा हो गया था दैट अ स्पार्क वाज देयर, दैट एक चिंगारी लगी और एक चिंगारी से पूरी आग फैल जाती है. रिमेंबर हम बोलते हैं क्यों आग लगा रही है, दैट इज जहां पे एक चिंगारी लगी वहां पे पूरी आग फैल जाएगी. तो द स्पार्क्स जो ग्लिम्स है वो रेफर करता है टू द ईयर 1855 to 57. ओके, द स्पार्क्स जो है वो कब से कब रेफर कर रहा है? 1855 to 1857. Text continued to ruin the peasants in Bengal. जो संथाल्स थे who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike.
टैक्सेस जो थे ना दे कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, वो कंटिन्यूसली वो पीजेंट्स को रूइन करते रहे टैक्सेस जो थे। एंड इन बंगाल जो संथाल्स थे जिन्होंने क्या किया था, who have lost their lands under the new land rules, वो बहुत ही desperate हो गए। and in 1855 उनसे और रुका नहीं गया, they started and they rose a rebellion and उन्होंने सारे यूरोपियंस को मैसेकर कर दिया, all the Europeans and their supporters alike, और उनके सारे सपोर्टर्स को भी। Now discontent was brewing in East India Company's army too. Now there was discontent, स्टार्ट हो रहा था डिसकंटेंट होना, किसके अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी ना उसमें भी। नाउ स्पीच बबल क्या कह रहे हैं, द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन एंड सर्वेंट्स, व्हाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी व्हिच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। Who is the topi wala to abolish our age old customs? We must drive out the अंग्रेज। Now people जो थे ना इतना इनके अगेंस्ट हो गए थे ना, because now they have realized कि हिंदुस्तान हमारा है, why should someone else we can play a dominant role over us, why should anyone dominate us, and especially ये अंग्रेज नहीं। So the speech bubble में जो लोग हैं ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, the first one is saying कि ये जो white soldiers है ना इन्हें बड़े बड़े घर मिलते हैं, बंगले मिलते हैं रहने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी इनको सैलरीज मिलती हैं, खूब सारे सर्वेंट्स मिलते हैं, while हम लोगों को बहुत ही छोटा मोटा पिटियंस दया करके जैसे हमें कुछ दे दिया जाता है ना, ऐसे तो हमें कुछ देते हैं, एंड बहुत ही स्लो प्रमोशंस हमें देते हैं। एंड द थर्ड वन इज सेइंग, ये अंग्रेज हमें कहते हैं कि हम सी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएं, और ये बिल्कुल हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। ये टोपी वाले होते कौन है, हमारे एज ओल्ड कस्टम्स को अबॉलिश करने वाले, खत्म करने वाले। एंड द फोर्थ वन इज सेइंग वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से निकालना ही होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। जो सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, ठीक है, व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे इसको पूरा का पूरा जो है उन्होंने अटैक किया ऑफ हिज रेजिमेंट, जो एडजुटेंट थे उनके रेजिमेंट के, एंड वाज एग्जीक्यूटेड, एंड फाइनली वो क्या हुए, फाइनली वो एग्जीक्यूट हो गए। And then thousands of the sepoys revolted and they were stripped of their uniform. Thousands of the sepoys जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया एंड उनको उनकी यूनिफॉर्म से स्ट्रिप कर दिया गया, दैट इज उनसे उनकी वर्दियां ले ली गई। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, यूनिफॉर्म्स उनसे ले ली गई, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दे वर पुट बिहाइंड दी बार्स, उन्हें वहां पे डाल दिया, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब किसी को तो उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, दैट इज किसी को तो उन्होंने फांसी दे दी, किसी का अपमान किया, किसी को सलाखों में डाल दिया गया, बेड़ियां डाल दी हाथ पांव के अंदर, तो ये सब चीजें वहां पे हुई। तो अल्टीमेटली जो था उन्होंने इनको बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन, कुछ इंग्लिशमैन थे जिन्होंने इंडियंस को हम बोलेंगे कि समझना शुरू किया, केयर करते थे वो कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। पीपल, ठीक है, what the white man has deceived us too. Now see, few Englishmen जो केयर करते थे ना टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और दी पीपल्स माइंड, या पीपल के माइंड को वो समझने की कोशिश करते थे, या इंडियन कस्टम्स को समझने की कोशिश करते थे। तो वो हमें कैसे पता चल रहा है, वन मैन केम, वो बोलता है ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, ओ प्राउड, तुम अपने आप पे बहुत गर्व महसूस करने वाले जो तुम ब्राह्मण सोल्जर हो ना, क्या तुम्हें मालूम है वो बुलेट्स के ऊपर जो ग्रीस जिसको तुम मुंह से बाइट करके फिर बुलेट को शूट करते हो, यूज करते हो, वो किससे बना हुआ है, वो काउज और पिग्स के फैट से बना है। तो वो ब्राह्मण बोलता है व्हाट, क्या? तो उतने में थर्ड पर्सन कह रहा है इसका मतलब ये व्हाइट पीपल ने हमें धोखा दिया, इन्होंने भी हमें चीट किया। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their service emperor would want their service। और soon जो चपातीस थी they were sent from village to village भेजा जा रहा था ये बताने के लिए to tell the people that their emperor would want their services, कि तुम्हारे emperor को अब तुम्हारी services की जरूरत पड़ेगी। Yes, all my village men will be ready।
उन्होंने बोला यस, जो जितने भी मेरे विलेज मैन है ना, दे विल बी रेडी, वो बिल्कुल तैयार है. सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, एंड सिमिलरली इंडियन सोल्जर्स में क्या सर्कुलेट हुआ, लोटस का फ्लावर सर्कुलेट हुआ. एंड डेथ टू द फॉरेनर्स, और उसका मीनिंग क्या था, डेथ टू द फॉरेनर्स, कि हमें इन फॉरेनर्स को मौत के घाट उतारना है, इन्हें खत्म करना है. द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स, और ये जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स था ना, इन्होंने जितनी हेल्प, या ग्रुप ऑफ जो इंडियन पीपल था, पूरे के पूरे जो इंडियन पीपल थे, जो वो हेल्प दे सकते थे ना, गेव ऑल द हेल्प एंड ऑल द शेल्टर टू द पेट्रियट्स, उन्होंने सारी हेल्प और सारा जो शेल्टर था पेट्रियट्स को दिया. Now that was a very interesting glimpse, and now we are moving to the eighth one, that is the revolt, that is 1857. This you must have studied in history. आपने इसको हिस्ट्री की क्लास में भी पढ़ा होगा. 1857 का रिवोल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवोल्ट है ये. 1857 की क्रांति, जिसको आपने हिंदी में भी पढ़ा है कहीं पे, ठीक है. तो ये जो है रिवोल्ट, बेसिकली इसको हम जब देखेंगे, इट वॉज द बिगेस्ट रिवोल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो ये रिवोल्ट जो होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम विद्रोह बोलते हैं. ओके, विद्रोह बोल सकते हैं आप, इसको क्रांति बोल सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू से, बट दैट इज रिवोल्ट एंड इट इज ऑफ 1857. नाउ द पिक्टोरियल ग्लिम्स सेज दैट देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. मेरठ के अंदर एक बहुत ही वायलेंट आउटब्रेक हुआ. वायलेंट, यू नो, वायलेंट जिसके अंदर बहुत हिंसा होती है, बहुत मार धाड़, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हर चीज का बहुत लॉस होता है, दैट इज अ वायलेंट. और ये आउटब्रेक हुआ कहाँ पे, एट अ प्लेस नेम मेरठ. द सिपॉयज मार्च टू दिल्ली, और जो सिपॉयज थे ना, दे ऑल मार्च टू दिल्ली, सब दिल्ली की तरफ मूव किए. लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह. और ये स्पीच बबल क्या बोल रहा है, कि वो लोग क्या बोलते हुए जा रहे थे, कि हमारे जो किंग हैं, सम्राट जो हैं हमारे बहादुर शाह, वो अमर रहे. द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर. नाउ दिस रिबेलियन वाज स्प्रेड मच एंड मच वाइडर. ये रिबेलियन बहुत भयंकर, बहुत बुरे तरीके से दूर दूर तक फैलता गया. Many landlords had lost their land because of the British policies and they were sore. बहुत से landlords ऐसे थे जिन्होंने अपनी land खो दी. Why? Because of the strong, we can say the strict British policies, and they were sore. वो बहुत नाराज थे. The white man's rule must end, and वो इतने नाराज थे कि yes, they were saying, वो क्या बोल रहे थे, these white people, इनका rule खत्म हो जाना चाहिए, their rule must end. Yes, we will help you, and they were saying कि yes, sure, and we are going to help you. We are with you, and we are going to help you, and together we will put these white people rules to end. हम इनके rule को together we will put it to end. Now comes the ninth, that is the fight for freedom, that is 1857. 1857 का जो revolt था, ultimately वो किसके लिए था, it was for the fight for freedom. वो freedom की fight के लिए ही था. Okay, आजादी की लड़ाई भी कैन से, ठीक है, स्वतंत्रता का संग्राम जिसे हम बोलते हैं 1857 का. मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वाज बिटर. बहुत से फॉर्मर रूलर्स, अभी हम इस ग्लिम्स में जिसको पढ़ेंगे वो हम बेगम हजरत महल के बारे में पढ़ रहे हैं. शी इज सेइंग समथिंग एंड उसको रिपीट में क्या मिल रहा है हम देखते हैं. सो मैनी फॉर्मर रूलर्स जो थे, जस्ट लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, शी वाज वेरी बिटर. बिटर कहने का मतलब उनके में बहुत कड़वाहट थी, ठीक है. द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम. शी सेड दीज व्हाइट पीपल, ये दे व्हाइट मैन, ये ब्रिटिशर्स, दे हैव टेकन अवे माई किंगडम एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम लाइक दिस. पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, एंड जो पॉपुलर लीडर्स थे जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद के थे, ही टोल्ड द पीपल व्हाट ही सेड. आप स्पीच बबल देख रहे हो, ही इज सेइंग राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रनिंग are ruining our land, and he is saying कि मेरे देशवासियों, मेरे लोगों, उठो भाइयों उठो, बिकॉज ये जो अंग्रेज है ना, ये हमारी भूमि को बर्बाद कर रहे हैं. एंड ही इज सेइंग ये अंग्रेज हमारी भूमि को बर्बाद कर रहे हैं, हमें इनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए. द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, एंड बिफोर दैट दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स. एंड इन्होंने क्या किया, ये जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने भी ये जो अपसर्ज हो रहा था इनके अगेंस्ट, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया अगेंस्ट दी फॉरेनर्स. एंड आफ्टर जब ये अहमदुल्ला खान ने जब जो भी चीज बोली पीपल को कि दैट उठो भाइयों उठो, ये अंग्रेज हमें बर्बाद कर रहे हैं एंड वी शुड स्टैंड अगेंस्ट देम, हमें इनके अगेंस्ट खड़े होके कुछ करना चाहिए.
इन्हें हमें अपनी इंडिया से ड्राइव आउट करना है. सो द पीपल रोज एवरीवेयर, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो कानपुर हो एंड इलाहाबाद, एवरीवेयर. सो दिस वाज अ वाइड स्प्रेड अपसर्च. ये जो क्रांति थी बहुत दूर दूर तक फैल गई थी. Azimullah Khan told Tatya Tope, we should have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence. जो अजीमुल्ला जो थे, अजीमुल्ला खान, उन्होंने तांत्या तोपे से एक बात कही कि हमें पेशवा नाना साहब जो हैं उन्हें अपना लीडर बनाना चाहिए इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उन्होंने अपना एक सजेशन उनको दिया. ठीक है. द पेट्रोइट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल ओवर द नॉर्थ इंडिया. सो पेट्रोइट्स जो थे दे पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, वो सारे ब्रिटिशर्स के ऊपर, वी कैन से ब्रिटिशर्स के ऊपर चढ़ गए. एकजुटता से उन्होंने पूरा उनके ऊपर हमला किया. एंड फॉट पिच्ड मतलब दे कंबाइंड टुगेदर, एंड एक साथ मिलकर उन्होंने एज ए सिंगल यूनिट बैटल किया ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, पूरी नॉर्थ इंडिया के अंदर. Then 8 years old Kunwar Singh, 80 years old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. Now 80 years old एक फाइटर थे जिनका नाम था कुंवर सिंह ऑफ बिहार के थे ये. He received a bullet in his wrist. मदर गंगा, this is my last offering to you. Now what he says कि मदर गंगा ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है आपके लिए, ये मेरी अंतिम भेंट है आपके लिए. And this way what happens, उन्होंने हर फ्रीडम फाइटर ने अपना जो कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दे सकते थे, ईच एंड एवरी पेट्रोइट जो इस फ्रीडम फाइट के अंदर अपना जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकते थे वो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. एंड दिस वे वी कैन से दीज वर द ग्लिम्पसेस दैट फ्रॉम फॉर्म आवर फ्रीडम मूवमेंट. ये सारे के सारे ग्लिम्पसेस जो थे ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट में से थे. और इसको एक बहुत ही पिक्टोरियल वे में, यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव वे में, हु हैज ट्राइड टू प्रेजेंट इट, SD सावंत. Okay, so this is by SD Sawant and it was really very interesting, and I hope history has sounded interesting for the first time because it is in such a pictorial, such an interesting way कि ये सारे जो glimpses हैं, सारे जो events हैं, ये आपको बहुत अच्छे से clearly समझ आए होंगे. So hope you all have clearly understood all these pictorial glimpses. You go through it once again and I hope you will understand it well. Okay, so now we will meet in our next class and moving on to our next chapter that we'll be continuing in next class. This is all for today's class and keep studying, stay home and stay safe and take care of yourself.